सामूहिक गुरुवंदन इच्छामि कमात्मनो वंदेयु जानी जाए शिवाय इच्छामि कमात्मनो वंदेयु जानी जाए शिवाय इच्छा सुवराई सुबलपा शरीरं विनावाद सुखसरणं जात्रा वीरो हुजोरी स्वामी साका शेची हाथ पानी को लाभ देसोजी इच्छामि कमात्मनो वंदेयु जानी जाए शिवाय कारण संदेश भगवान अभूपयोगी अभ्यर्थना नायक मांगेल जंगीन जी अपने पत्र जो बत्ते पानी में व्यावचे आरोग्य तथा उदाहरण समाचार ऐसा पत्र विपदाए जंगीन जी बच्चे में परिणाम सोमवार में दुखे जान अहम न जाने सब इच्छा में परमात्मा देव जानी जाए इसी का उत्तर इच्छा में परमात्मा देव जानी जाए इसी का उत्तर कारण संदेश भगवान वायना संदेश ईच इच्छामि कवासनो देव जानी जाए इसी का वचन कारण संदेश भगवान वायना लेसु जाओ से ईच इच्छामि कवासनो देव जानी जाए इसी का वचन इसका ही भगवान प्रसाद करी वायना प्रसाद कराओ नमो रिंदाणु रिंदाणुम लवायरियाणु नमो वज्जायाणु नमो लोये संबदाऊणम एसो पंचनमुक्तारो नमभावपणासनो मंगलानंजनमेतिपडमं भवै मंगलम नमो दुर्वाररागनिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया मोहो भयवम जय स्वर्णं पवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमोनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानांजन शलाका नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Vai,
સાહેબ અમારા ચરોતર વિદ્યા મંડળના ચેરમેન છે શ્રી ગુરુભાઈ. આવો ચાલો શરૂ કરો. ગુરુદેવને કોટડી વંદન. આ ગુરુદેવ આપણને ગમતા છે. હૃદયને સાથે વાર્તાલાપ કરે એવા ગુરુ છે. થાકે મનથી તારો ઓળખો શોધીએ, સ્વાર્થ છે એમ નહીં રાહત શોધીએ, સ્વસ્થ વિચારીએ કલાથી શોધીએ, હાર જીત એમ નહીં સત્વને શોધીએ. વાહ ગુરુ, તો છે અમારો વિશાળ. અરખાવ છું ને ત્યારે તને ગાઉં છું. તારી શક્તિમાં, તારી ભક્તિમાં શક્તિ લેતો જાઉં છું. નવી ઉર્જાને ગ્રહણ કરતો જાઉં છું. તારે આશીર્વાદને સ્પર્શતો જાઉં છું. વાહ ગુરુ, તું તો અમારો વિશાળ છે. તારા સ્વરને ભેદ ભૂલે છે, તારા વિશે ચોખ્ખા દેખાય છે. હું પણ નજર દિશે છે. ઓગળી જાય ક્રમે ક્રમે તે શોભત છે. વાહ ગુરુ, તું તો અમારો વિશાળ છે. આ ગુરુદેવને ફરી એક વખત કોટડી વંદન છે. 3 દિવસના આ પ્રવચન માળાની અંદર આપણે સૌએ સરસ રીતે ભાગ લીધો છે. આપણે આપણી જીવનને શોધવા માટે, આપણી યાત્રાને સુદૃઢ બનાવવા માટે આપણે ચોક્કસ વિચાર કરી રહ્યા છીએ. સાહેબજી, આ વિદ્યાનગરની અંદર અમારા સંતો છે, એનું પ્રભુત્વ પણ છે ગામની અંદર, પણ સાથે સાથે અમને સહયોગ ઘણા બધી સંસ્થાઓ પણ આપતી રહી છે. આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર શ્રી નિરંજયભાઈ પટેલ, ચરોતર વિદ્યા મંડળના ચેરમેન શ્રી ભીખુભાઈ પટેલ. બંને વિનંતી કરીશ કે સાહેબ પાસે આશીર્વાદ દે અને એની પાસે કેટલા પુસ્તક ઘર કશું પ્લીઝ રાજેન્દ્રભાઈ આવો ભીખુભાઈ બરાબર. જય નામ જયતી, જય નામ જયતી, જય નામ જયતી, જય નામ જયતી, જય નામ જયતી. તમે જય નામ અદભુત એવા દિશા સંજય સાહેબજી, આ વિશેષ સમય છે, વિશેષ દિવસ છે, એટલે થોડાક વ્યક્તિનો હાય આપે સર્વે નોંધ લીધી છે કે નહીં, પણ આપણે એક વસ્તુ કેટલી જગ્યાએથી ભક્તિ પણ મળતી હોય છે. એ સૈનિક બાર ઉભા છે, આપના પગરખાને સરખા ગોઠવી રહ્યા છે. એવા આરએસએસના સૈનિકોને વિનંતી છે કે ઉભા થાય અહીંયા હોય તો અંદર, અને સુનિલભાઈ કહેતા હોય તો બધા રહે. સાહેબજી, બહાર રહેલા બધા પગરખાને બરાબર સુવ્યવસ્થિત ગોઠવે અને એ ગોઠવા પછી જ અંદર આવો. આ ગજબની ભક્તિ છે.
સાહેબજી વિદ્યાર્થીઓ ને આ છૂટી છે, છૂટીના દિવસ છતાંય થોડા વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે. સાથે સાથે આપણા જૈન નહીં પણ આપની બુકના ચાહક વર્ગ પણ અહીંયા આવ્યો છે. એ બધા આમંત્રિત મહેમાનો અને અમે જ્યારે જાહેર પ્રવચન મૂકેલો ને ત્યારે એ બધા જ સાહેબજીને ક્યારે વંદન કરવા આવે, સાહેબજીને ક્યારે સાંભળવા આવે, આ બધા જ અહીંયા પધાર્યા છે. આપણે સૌ સંતના દરેક સભ્યો તાળીના ધૂન સાથે એ લોકોને વધાવીએ. સર્વને વિનંતી, કારણ કે આપણે ઘણા બધા જૈનેતર ભાઈઓને નહીં ખ્યાલ હોય તો હું વિશેષ ઉલ્લેખ કરી રહ્યો છું. પ્રવચન ઉઠ્યા બાદ શ્રી મહાવીરજી વિદ્યાલય અહીંથી જરાક જ આગળ જવાનું છે. વોલેન્ટિયર્સ ભાઈઓ આપણે ગાઈડ કરશે. ત્યાં આપણું જી પ્રસાદ પણ છે, ત્યાં જ આપણે શ્રી સંત ગમન રાખેલું છે. તો આપ સર્વને હાર્દિક નિમંત્રણ છે. પ્રવચન ઉઠ્યા બાદ આપણે સૌ એકત્રિત થશું. હવે હું એ પરિવારને બોલાવવા માંગુ સાહેબજી કે એ પરિવાર જ્યારે આપનું આગમન થવાનું હતું ત્યારે વિચાર કરેલો કે શ્રી સંત એ દિવસે નવકાશી રાખશે. ત્યારે આ પરિવારને આપણે કહ્યું કે સાહેબ આપણે નવકાશીનો લાભાર્થી બનો. તો એને હાથ પાડી દીધી. પછી રાત્રે ફોન આવે છે કે બીજા 2 દિવસનું શું, એટલે શનિ રવિ ના પણ નવકાશીના લાભાર્થી બને અને રવિવારના શ્રી સંત સ્વામી વાસના લાભાર્થી બને. એવા જોશનાની નવી જન્મ 7 પરિવારને વિનંતી કરી છે ઉપસ્થિત થાય. નવીભાઈ આખું પરિવાર પધારો, વ્રત પધારો અને સાથે સાથે ગુરુ પૂજન પણ કરશે અને સાહેબજીને કામની પણ કરશે. ચાલો જોશનાબેન તૈયાર છે? જોશનાબેન સાધુજી મહારાજ પાછળ બધાને વિનંતી થોડા આગળ આવી જઈએ. બધા આગળ આવી જાઓ. પરિવાર અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એનું બહુમાન કરી રહ્યા છે. આપણે સૌ તાળીઓના ધૂન સાથે જૈન દેવી શાસ્ત્રના મોટા સાથે આપણે ભાઈ સૈલી ચાલો
चलो बेन जल्दी चलो अब मुंडो जल्दी चलो जल्दी चलो मैं अभी चलो नवीन भाई एज 95 एज 95 4 स्टेज का कैंसर और सोचा भी नहीं था किसी ने वो स्त्री वो प्रौढ़ा वो वृद्धा चेहरे पे मुस्कान मिरेकल इनका स्वास्थ्य पूछने के लिए कोई भी आ जाए तो उसको लोग ये मैं बीमार हूं कि ये बीमार है ऐसा हौसला बातचीत करने की एक ताकत जबरदस्त और ये बात फैलाते 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 किसी पत्रकार के पास गई वो इंटरव्यू लेने के लिए आया 95 की एज 4 स्टेज का कैंसर ये चेहरे पे मुस्कान और बेड में सोई हुई माँ को पूछा कि माँ राज बताना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये स्थिति में भी आपके चेहरे पे मुस्कान और इतना जबरदस्त हौसला व्हाट इज द रीजन और वो 95 की एज की माँ ने कहा कि मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है सुनने वाला हैरान 95 की एज में बॉयफ्रेंड मगर लगा कि कुछ तो राज होगा और तब उसने पूछा माँ वो बॉयफ्रेंड कौन जिसको मैंने कमिट किया है 24 घंटे तो मेरे साथ रहेगा दुनिया में कोई बॉयफ्रेंड चाहे कितना भी पागल हो लड़की के पीछे उनकी भी जिम्मेदारी होती है उनका शरीर होता है सब कुछ होने के बाद 24 घंटे वो कभी नहीं रहता है मगर मैंने एक बॉयफ्रेंड को रखा कमिटमेंट किया 24 घंटे तो मेरे साथ रहेगा और उसने हाँ बोली है मेरे चेहरे के मुस्कान का राज ये है मेरी मस्ती का राज ये है तब पूछा माँ वो बॉयफ्रेंड का आप नाम बता सकती हो और बता दिया विल पावर चाहे कैसी भी स्थिति में मेरे चेहरे पे मुस्कान बने ड्यू टू विल पावर आई वुड लाइक टू आस्क यू आज का सब्जेक्ट है वाई मी कभी कभी कितने लोग अभी तक मेरे पास आते हैं महाराज साहब मेरे पर ही क्यों क्या कैंसर मुझे ही क्यों फेल में ही क्यों हुआ बिजनेस में लॉस मेरा ही क्यों मेरी ही पत्नी मायके क्यों चली गई मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ क्यों है हर जगह एक ही बात चलती है वाई मी मैं ही क्यों और आज उनको लेकर मैं ट्विस्ट करना चाहता हूं भगवान से मैं ये 4 प्रश्न पूछता हूं भगवान मुझे ही क्यों मिला रिपीट आप ये बोलते हो मुझे ही दुख क्यों मिला मैं ये पूछना चाहता हूं भगवान मुझे ही सुख क्यों मिला सुख मुझे ही क्यों मिला कभी आपके मन में ये भाव आया कि कितने बच्चे मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी दुनिया में 4 करोड़ बेटे के पास आंख नहीं है 7 करोड़ लड़के के पास कान नहीं है 25 करोड़ बेटे के पास अपने माँ बाप नहीं है 12 करोड़ लोगों के पास अपना मकान नहीं है ये इतनी वेदना और इतने के बीच में आपको लगता है कि भगवान मेरे पास आंख मेरे पास कान मेरे पास पैर मेरे पास मन जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ व्हाट इज द रीजन सच बोला तुमने ये पूछा कभी भगवान मुझे ही क्यों मिला ब्लाइंड स्कूल में तुम चले जाओ किसी छोटे बच्चे को देखो कोई अपराध नहीं किया फिर जन्म से उनको आंख नहीं है तुमने कभी पूछा भगवान उसने क्या गलत किया था उसकी आंख नहीं है और मैंने कौन सा अच्छा पराक्रम किया कि 50 साल तक मेरी आंख बनी रही है
आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुमने कभी परमात्मा को ये प्रश्न पूछा, भगवान ये सुख मुझे ही क्यों मिला? 7 करोड़ के बीच में मेरा नंबर क्यों नहीं लगा? 25 करोड़ लोगों के बीच में मेरा नंबर क्यों नहीं लगा? 11 करोड़ बेटी के पास अपने माँ बाप नहीं, उसमें मेरा नंबर क्यों नहीं लगा? भगवान व्हाई मी? एक मैं बताऊं, मैंने जो मांगा है मुझे नहीं मिला वो छोड़ो। भगवान मैंने जो मांगा है वो मुझे नहीं मिला उसके बाद छोड़ो, मगर मैंने जो सोचा भी नहीं था वो सब कुछ मिल गया, इनका क्या? मैंने ये नहीं सोचा था कि 60-70 साल तक, और मेरी बात करूं दूर 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 तक मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस जीवन में साधु बन जाऊंगा। नेवर। और जब भी मैं याद करता हूं गुरुदेव को, तब लगता है कि गुरुदेव आपने कमाल कर दिया, कमाल। मेरे दिमाग में कभी यह बात नहीं थी कि जीवन में मैं पवित्र जीवन का मालिक बन जाऊंगा। सब कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कभी? और एक बात बताऊं, मुझे जो भी जन्म से मिला ना, उसके लिए न मेरा पुरुषार्थ था, रिपीट करना चाहता हूं, न मेरा पुरुषार्थ था, न मेरी प्रज्ञा थी, न मेरा प्लानिंग था। 3 चीज नहीं थी। आंख पाने के लिए मैंने कोई मां के पेट में पुरुषार्थ नहीं किया था। मेरे पास वो प्रज्ञा भी नहीं थी कि मैं सब करूं, और मेरे पास प्लानिंग नहीं था। ऐसा मैच में प्लानिंग होता है, हर जगह बिजनेस में प्लानिंग होता है। मैंने कभी माँ के पेट में प्लानिंग भी नहीं किया था, फिर भी जन्म के पहले दिन से आंख, नाक, कान, पैर, मन सब कुछ मिला। वाई मी? आज बिल्कुल अलग टॉपिक लेकर के आया हूं, आपकी शिकायत को खत्म कर दूं, थैंक्स गिविंग चालू हो जाए। भगवान शिकायत क्या करूं, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। तुम कभी ब्लाइंड स्कूल में गए? मंदिर में तो बहुत बार गए, कभी ब्लाइंड स्कूल में गए क्या? तुमने वो छोटे छोटे बच्चे की वेदना, पीड़ा, व्यथा तुमने देखी कि क्या करेंगे पूरी जिंदगी भर तक? रोटी कहाँ है, चावल कहाँ है, पूरी कहाँ है, नमकीन कहाँ है, पता नहीं है, कुछ खाते रहते। उनके सामने थाली रखो, तुम बोलोगे सबको दे दिया, तब वो समझेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, वाई मी? भगवान ये पुण्य मुझे ही क्यों मिला? पहला प्रश्न, ये पुण्य मुझे ही क्यों मिला? आज जो भी समय मेरे सामने, उन सबको मैं पूछना चाहता हूं। मैं दावा नहीं करता हूं, मगर अभी आप मुझे पूछो तो मैं इतना आनंदित हूं, इतना आनंदित। बाईपास का ऑपरेशन भी हुआ, नी रिप्लेसमेंट भी हुआ, कोरोना भी हुआ, चिकनगुनिया भी हुआ, मगर सब कुछ होने के बाद हॉस्पिटल में था, तब भी मैं आनंदित था, क्योंकि कोरोना में कई लोग लड़के अपने बाप की डेड बॉडी नहीं पाए। रिपीट, बराबर है? अरे खुद के बाप की डेड बॉडी नहीं, बाप अपने बेटे की डेड बॉडी नहीं पाया, और सीधा बोल दिया कोथड़ा में शिवी ने, अरे आवेद ना। वो लड़का मेरे पास रोआ था, गुरुदेव मेरे पिताजी के पीछे मैंने जिंदगी न्यौछावर कर दी, और पिताजी गुरुदेव चल बसे, हमारी आंखों के सामने गुरुदेव प्लास्टिक में पैक करके रवाना कर दिया। वी आर हेल्पलेस। मैं ब्रिज कैंडी में था, तब ये देखता था, भगवान धन्यवाद वापिस आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या मैं आप रिपीट करना चाहता हूं, इस लड़के को अभी कितने लड़के मेरे पास आते हैं? अभी माहौल है ना कॉलेज का, स्कूल का, क्या लगता है कि उन लोगों न कभी उसके माता पिता ने समझा, न कभी यूनिवर्सिटी ने समझा कि ये क्या इतने दुखी, इतने टेंशन क्यों? मगर 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम जैसे लगता है कि सब बड़ी पीड़ा होती है। इस उम्र में, खेलने की उम्र में इतनी वेदना, इतनी पीड़ा, इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तुमने कभी ये सोचा भगवान ये पुण्य मुझे ही क्यों मिला? 1964 में गुरुदेव भुवन भानु की शिविर में मैं भी गया था। 250 लड़के मेरे साथ थे। मैं ही क्यों? गुरुदेव आपने मुझे ही क्यों पसंद किया? मुझे ही क्यों पसंद किया? 250 लड़के के बीच में आपने मुझे ही क्यों पसंद किया? वाई मी? आपने मेरे में ऐसा क्या दिखा पड़ा कि रजनी तू दीक्षालय में खुश हो जाऊंगा? क्या था मेरे में? कुछ था तो नहीं। मैं मैट्रिक पास हूं, मैं कॉलेज में कभी गया नहीं, 10वीं क्लास में फेल हो गया, और फ्रॉम 1 to लेकर के 11 तक कभी 54% से मैं आगे नहीं आया।
इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, तुमने कभी भगवान को पूछा, भगवान ये सब व्यवस्था मुझे ही क्यों मिली? एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? आपकी शिकायत का एक मौका नहीं मिलेगा, एक मौका नहीं। आप धन्यवाद धन्यवाद को छोड़ के कुछ नहीं दे पाएंगे। तुमने वो पीड़ा देखी नहीं। मैं जुपिटर में गया था, चिकनगुनिया होने के बाद मैं खुद के कपड़े नहीं पहन पाता था, और ऐसी स्थिति में मुझे 4 साधु खड़े करते थे। ऐसी स्थिति में थाना की हॉस्पिटल जुपिटर में गया था, मुझे लगता था मेरी पीड़ा बहुत है, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, चीज निकल जाती थी। ऐसी स्थिति में मैं जब मैं गया और मुझे लगा मेरी पीड़ा जबरदस्त है, मगर जुपिटर में मैंने जो पीड़ितों को देखा, भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान मेरी पीड़ा केजी की है। चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्या पीड़ा? 16 साल 18 साल 22 साल का लड़का, एक लड़के को मैंने देखा 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया था, 8वीं, कमर खत्म। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, वो पुअर था, इनका बाप खत्म कमर, इनका बाप पुअर था, और बेटे की माँ चली गई। महाराज साहब यानी माँ भागी गई, अन कमर टूटी गई, आत्मा मर्दी पड़ो साहब, आखी जिंदगी मारे ने साचा मुझे। ये तुमने कभी देखा? कभी हॉस्पिटल में गए, कभी जेल में गए, कभी ब्लाइंड स्कूल में, बधिर स्कूल में गए तुमने? और कभी पूछा भगवान को, भगवान मैं जेल में क्यों नहीं हूं? आपके पास कोई भी दुख की डेफिनेशन बताओ, मैं कोई नहीं। विल पावर 95 केज में 4 स्टेज के कैंसर, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है, और वही विल पावर को लेकर के हमारा जीवन पूरा चलता है मस्ती से। If you can give me answer, I would like to ask you, what is the complaint in your life? आप कोई भी है तो मुझे दिल से बताओ, कमेंट किए बिना बताओ, गुरुदेव आज दुख है हमारा जीवन, बताओ एक दुख बताओ तुम्हें। मैं कहता हूं इसलिए हाँ मत बोलना, रियली तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम दुखी 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 हो, तो मुझे बताओ कौन सा दुख है आपके जीवन में। आप वाइस चांसलर हो, आपको भी मैं कहना चाहता हूं कुछ। मैं दिल्ली में था, एक लड़के ने सुसाइड कर दिया 14, 15, 16 साल के पहले 2007 में, और लड़का सुसाइड नोट रख के गया था कि 93% का एक्सपेक्टेशन था, 91.5 आया, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। ये सुसाइड करने का ये मौका नहीं, ये सुसाइड करने की बात थी। 91.5 एक्सपेक्टेशन 93 का था, क्या फर्क पड़ जाता है? हमने शिक्षा में वो क्यों नहीं बताया कि तुम टिक जाओ, चाहे दुनिया में कितने भी संघर्ष आए, संघर्ष हर संघर्ष तुमसे छोटे हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दुनिया में कोई पण संघर्ष विल पावर अगर नानो है, कोई भी संघर्ष चाहे कितना भी हो, आपके विल पावर के सामने वो बिल्कुल छोटा और कमजोर है, नपुंसक है। इतनी बड़ी सभा में पूछना चाहता हूं भाइयों और बहनों को, क्या सुसाइड चल रहा है? क्या सुसाइड? जीना ही नहीं। एजुकेशन इज द वन पेज ऑफ लाइफ बुक, नॉट होल पेज। मारे पूछू जे तमने एक पण दुख तमारू खरेखर हो तो उभा थईने मने को महाराज साहेब आ दुख घणું છે। वाई मी? रात को मैं कभी उठ जाता हूँ, जिनके सामने देखता हूँ आंख में आंसू आता है। जो चीज भगवान महावीर के पास थी, गौतम स्वामी के पास थी, भुवन भानुश्री महाराज के पास थी, वो चीज मेरे पास कैसे आ गई? मैं कोई क्वालिफाइड तो नहीं था। इस चीज पाने के लिए जो पवित्रता योग्यता चाहिए आज भी मेरे पास नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी मुझे क्यों? आज मेरे सामने जो भी बैठे, मैं 4 आइटम की बात करना चाहता हूं। आपको कभी लगता है मेरा पुण्य क्यों गुरुदेव? मैंने कोई जिंदगी भर भगवान का दर्शन नहीं किया कि मेरी आंख हो। मैंने जिंदगी भर परमात्मा की स्तुति नहीं सुनी है कि जिसके हिसाब से मेरी जुबान हो।
मैंने माँ और बहन के फिर गाली भी बोली है, फिर भी गुरुदेव मेरी जुबान क्यों बची? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, माँ और बहन पे गाली देने के बावजूद भी मेरी जुबान क्यों है? और वो छोटे बेटे ने किसी को गाली नहीं दी, फिर भी जन्म से उनकी जुबान क्यों चली गई है? आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, फिर से मैं दावा से बोला, અહીંયા બેઠેલા માતા બેન ભાઈ જે હોય એને કહું, ઊભા થઈ જાઓ ખુશીથી, એક પણ દુઃખ તમારી આગળ હોય તો. और यदि दुख नहीं है तो चेहरे पे मस्ती क्यों नहीं है? नहीं, मैं ये भी तो बताना चाहूंगा ना, दुख नहीं है तो तुम उदास क्यों हो, निराश क्यों हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? गुरुदेव जीवन में कुछ बचा नहीं, सब कुछ चला गया, ये निराशाजनक शब्द तो मेरे मुझसे क्यों नहीं करता है? एवरीथिंग इज गुड गोइंग. कोई जवाब है तुम्हारी? हूँ बोलू छू माटे मारी साथे संमत नहीं थता, तमारू मन कहते कि गुरुदेव आ अमारो प्रॉब्लम है तो खुशी थी तमे मने को. और एक बात बताऊं, हर प्रॉब्लम प्रोसेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए ही आता है. हर प्रॉब्लम प्रोग्रेस कर देता है, आपकी क्षमता हो तो. एक जबरदस्त तैराक स्विमिंग में जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया स्विमिंग में, और उसको किसी ने पूछा तू स्विमिंग में नंबर 1 पे आ गया कैसे हुआ? उसने मतलब हुआ तो ऐसा कि मेरा दुश्मन था ना, एक दिन उसने मुझे डुबाने के लिए धक्का मार दिया, मैं तैरने की सीख गया. तो खबर पड़ी, એને ડુબાડી દેવા માટે મને ધક્કો મારી દઉં, તરતા શીખી ગયો. हर प्रॉब्लम को प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर दिया. आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन योर लाइफ? आज खुले दिल से मैं बात करना चाहता हूं. आप बताओ कि आपको दुखी होने का, निराश होने का, उदास होने का, शिकायत करने का मन क्या है आपके पास? क्या कमी है कि तुम मजे में नहीं हो? क्या हुआ? घणी वार तो तमने जोईने मने एम लागे छे के तमारी साथे अमारे रोज पूछवी जोईए. तमे मने पूछो मजामां, ए मजा जीवाय कई छे ज नहीं बने. અને આજે આપણે થઈ જાય ભેગા, તમે મને કહો તમારા જીવનમાં દુઃખ શું છે, મને કહો. તમે નહીં, તમે મજામાં નથી, મિષ્ટાનની થાળી ઉપર પણ તમારા ચહેરા ઉપર મસ્તી નથી. વોટ ઇઝ ધ રીઝન? તમને ખબર છે, 2 ટીપા યુરિન અટકી જશે ને તો મોત સામે દેખાઈ જશે. 2 ટીપા ખાલી તમે યુરિન જાઓ ને યુરિન અટકી જાય ને ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ સહન થાય એવું નથી. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? ખાલી 2 ટીપા યુરિન અટકી જાય તો મોત તમને સામે દેખાય. આટલા વર્ષો પછી યુરિન આસાનીથી થાય છે, સ્ટૂલ આસાનીથી થાય છે, પાણી મજેથી જાય છે, ખોરાક મજેથી જાય છે. વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઇન યોર લાઈફ? वाई मी? रोज मैं खुद को प्रश्न पूछता हूँ, पागल बन जाता हूँ. कमाल हो गया. ऑन द एज ऑफ 76 अभी मैं बोल सकता हूँ प्रवचन कर सकता हूँ. रोज मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, भगवान अब तक मेरा वॉइस बॉक्स चला है. कमाल. 22 साल की उम्र से प्रवचन करता हूँ. ऑन द एज ऑफ 22, नाउ 76. 53 साल से ये वॉइस बॉक्स ने भगवान की परम कृपा मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए रोज धन्यवाद देता हूँ. आपकी मेंटालिटी क्या मैं जानना चाहता हूं. और एक प्रश्न, अभी मैं अमरोली कॉलेज में प्रवचन कर गया. हजारों लड़के के बीच में मैं कॉलेज में जाकर के प्रवचन करता हूं. उन लोगों को मैंने पूछा था, आप भी मुझे कोई बताएंगे तो आनंद आएगा. मैंने वो कॉलेज के लड़के को पूछा था कि कॉलेज की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद M.Com, LLB, BA जो भी हो गए तुम और घर पे जाएंगे तब
जिंदगी में कोई भी दिक्कत आएगी, स्ट्रगल आएगी, संघर्ष आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, उनके बीच में भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, ऐसा एक भी सब्जेक्ट सिलेबस में है क्या? नहीं, सच बोलो, क्यों नहीं? ओके, ओके। अभी एक नई नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, उसमें ये अब तक क्या हो गया? नहीं, ओके, आई एग्री विथ यू, आई एम हैप्पी फॉर दैट। मगर इतने साल तक तुमने कभी ये सोचा भी नहीं कि MBA होने के बावजूद भी इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं, डिसीज आ सकती है। और वो टाइम हर लड़के बस सीधा मरने की बात करता है, मरने की बात, चेहरे पे चमक क्यों नहीं है? और 2 ही मिनट में बताऊं, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम, बहुत प्यारा, मैंने वेरी आई लाइक दैट एग्जाम्पल। मैं भावनगर में था 40 साल के पहले, और ये लड़का मुझे मिलने के लिए आया, और मैंने बोला प्रवचन में नहीं था, नहीं गुरुदेव आज बोर्ड का रिजल्ट था। बोला क्या हुआ? मैंने साहब पार्टी दी क्या? अभी बोर्ड का रिजल्ट और पार्टी, तो दिमाग तो थोड़ा मेरा भी तो चलता है। मैंने पूछा 5 स्टार होटल में? हाँ हमारा साहब 5 स्टार होटल में पार्टी दी क्या मित्रों के साथ? बोला कितना परसेंटेज? 37। मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं लड़के की पीठ थपथपाई, भाई यार कमाल कर दिया। मैं बोला मजाक करता है, वो टाइम इंटरनेट नहीं था, उसने बता दिया ये रिजल्ट हमारा 37% और पार्टी 5 स्टार होटल में। मैं बोला तूने पार्टी दे दी वो तो समझ में आता है, मगर 37% में पार्टी देने का राज क्या? मारा साहब एक 97% वालों जे क्लास में जैसे 71 जवानों मजाक चलता है। इतना तो विल पावर 91.5 एक सुसाइड कर सकता है और 37 में पार्टी दे सकता है। व्हाट इज द रीजन? मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भगवान से वो प्रार्थना करना, भगवान मुझे बोझ मत देना, मगर इतनी प्रार्थना करना मेरा कंधा मजबूत कर देना। मेरे कंधे पे बोझ ज्यादा है, वो शिकायत कभी मत करना, भगवान को इतना कहना भगवान मेरा कंधा मजबूत कर देना ताकि बोझ लगे ही नहीं। साकर विनानी मिठाई होई सके पण दुख विनाનું जीवन नहीं હોય। बिना साकर की मिठाई हो सकती है, बिना नमक की नमकीन भी हो सकता है, मगर बिना पीड़ा, बिना कष्ट, बिना वेदना कोई जीवन नॉट पॉसिबल। भगवान का नहीं था, मेरा और आपका क्या? राम को जाना पड़े जंगल में, मारी दुखी थे, हर एक के जीवन में दुख तो आता है मगर दुखी नहीं थे, कुछ तो था राज। नंबर 1, आप अपने आप को प्रश्न पूछा, भगवान मेरा पुण्य अब तक इतना क्यों है? आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी। बिजनेस में लॉस गया मगर गुरुदेव दुकान अभी भी बची है। मान लिया 5 करोड़ का मेरा पेमेंट डूब गया, फिर भी दुकान बची है, सब कुछ बचा है, मेरी गुडविल भी है बाजार में, वापिस आ जाऊंगा। नंबर 1, अभी भी मेरा पुण्य क्यों है? नंबर 2, अभी भी मेरे पास मेरा परिवार क्यों है? बहुत बड़ी उपलब्धि परिवार की, फैमिली मेंबर्स। परिवाરની સૌથી મોટી તાકાત 3, વાત કરી એ પરિવાર, આશ્વાસન આપે એ પરિવાર, અને તમારા આંસુ લૂછે એવો परिवार। आज फॉरेन में वो स्थिति है, अपने साथ बात करने के लिए पेपर में ऐड देते, कोई बात करने वाला मिल जाए। मालूम है तुम्हें? फॉरेन के पेपर में वो ऐड आती है कि कोई बात करने के लिए आ जाए, 1 घंटा बात करता है, उनको $1 देते, बात करने वाला उनके साथ कोई नहीं। मैं भी दीक्षा जीन में था, मगर मैं रिपीट करना चाहता हूँ,
चाहे मेरा कितना वैराग्य वात्सल्य कितना जबरदस्त था, मगर मुझे परिवार नहीं मिला होता, मेरे गुरुदेव मुझे नहीं मिले होते, मेरे गुरु भाई मुझे नहीं मिले होते, मैं निश्चित तौर से मुनिजन में टिक नहीं पाता। नेवर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जब परिवार ने हौसला बढ़ा दिया। आपके पास यदि भी अभी भी परिवार है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे आपका बेटा है, चाहे आपके माता, चाहे आपके पिता, यदि आपके साथ तीन चीज, आपकी बात सुनने वाले, आपके आंसू पूछने वाले और आपका हौसला बढ़ाने वाले, मैं हूं। हम सब मजे में हैं, क्योंकि ये मेरा परिवार है। અને એક વાત કરી દઉં, પુણ્યના ઉદયકાળમાં સાધના થઈ શકે, પરિવાર હોય ત્યારે સમાધિ ટકી શકે। आपकी समाधि टिकाने में आपका परिवार बहुत कुछ ताकत रखता है, बहुत कुछ ताकत। ये आपका भाई, ये आपकी भाभी, वो आपकी माँ। मैं रिपीट करूँ, आपको ही कहना चाहता हूँ, मैं 10वीं में फेल था। वो टाइम 11वीं में मैट्रिक थी। फेल होने के बाद जब रिजल्ट लेने के लिए अंधेरी एमए हाई स्कूल थी, वहाँ से रिजल्ट लेके मैं बिफोर 60 इयर्स, और मेरे बड़े भाई कुर्सी पे बैठे थे घर में, और जैसे मैंने अंदर प्रवेश किया तो भाई ने पूछा रिजल्ट आ गया? मैंने हाँ, और रिजल्ट दिखा दिया। आई वॉज द फेल। मारा मोटा भाई कीधुं फेल थयो। हाँ, क्रिकेट रमवा जा, आवती साल मेहनत वधारे करजे। आप समझते, ये परिवार की ताकत तुम समझते हो? 10वीं क्लास में फेल होने के बाद एक कटु शब्द नहीं था, नेवर। ओके, क्रिकेट खेल, अगले साल थोड़ी मेहनत ज्यादा करना। आज माँ बाप डिस्टर्ब कर देते बेटे को, नालायक फेल हो गया, इतना परसेंट कम, खत्म हो जाता बेटा। आई वुड लाइक टू, सर बोला आपके लिए परिवार है ऐसा, पेट थपथपाने वाला। फेल होता हो तो भी चिंता मत करना, तेरा बाप तेरे साथ है, तेरी माँ तेरे साथ है। अभी 4 साल पहले कॉलेज में लड़की थी, MBBS में जा रही थी, चौथी लास्ट ईयर की एग्जाम दे के आई। और एग्जाम देने के बाद जैसे ही पेपर खत्म हो, इनके मोबाइल पे बाहर निकली तो पिताजी का फोन घंटी बजी। कहाँ है? बस एग्जाम खत्म हो चुकी है लास्ट ईयर की, और मैं आ रहा हूँ घर की ओर। घर मत आना, ओबेरो में जाना है। पापा आप ओबेरो की बात करते हो? क्या हुआ है? सरप्राइज। क्या मगर? और आपको बताऊं, बाप को बिल्कुल पता था कि बेटी क्रॉस नहीं कर पाएगी, पढ़ने में कमजोर थी, और बेटी समझ नहीं पाएगी पापा कर क्या रहे। पापा कोई प्रोग्राम? बस तू आजा ओबेरो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तेरी माँ और हम सब साथ में, तेरे भाई भी है, ओबेरो में जाएंगे। और ओबेरो में गए। बेटी सोच रही थी व्हाट इज द रीजन, और इतना सजाया था वो कमरा, और कमरा के बीच में जब बेटी का प्रवेश हुआ, पिताजी उनको लेने के लिए गए और गले में हार पहना दिया, और बेटी समझ नहीं पाती है पिताजी है क्या। अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, मैं पास नहीं हुई, डॉक्टर की लाइन क्रॉस नहीं की, और आपको मालूम है कि मैं तो डाउट में हूं कि शायद मैं पास न भी हूं। तब बाप ने इतना कहा, बेटी तू पास हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तेरा बाप हूं। 4 साल तूने जो पढ़ने की मेहनत की है उसका पुरस्कार भी मैं दे रहा हूं। ये परिवार, एक बाप अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए 4 साल तूने जो मेहनत की ना, मैं साक्षी हूं। फेल होना पास होना अलग बात है, मगर तेरा जो स्ट्रगल था पढ़ने के लिए, मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है, उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। तेरे लिए मैंने पार्टी रखी है। कौन बाप है ऐसा, कौन माँ है ऐसी अपने बेटे और बेटी को, फेलियर को पेट दबे का आश्वासन देती है? मैं कमजोर था पढ़ने में, साधु जीवन के बाद भी। संस्कृत की पहली बुक जिसको ऐसे ऐसे छोटे साधु 2 महीने में क्रॉस करते, वो क्रॉस करने में मुझे 11 साल लगा। 11 साल, 11 बार मैंने वो पहली बुक की, मगर जब भी मैं रोता था गुरुदेव मेरे साथ थे, डरे मुझू ने आ न होत न तो साधुपणाમાં ટક્યો પણ ન હોત।
हजारों लाखों लड़के के पास परिवार नहीं है, अनाथ आश्रम में वो रो रहे हैं। वाई मी गुरुदेव, आज मेरा बेटा मेरे साथ क्यों, मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों, मेरे बाप मेरे साथ क्यों, क्या हो गया गुरुदेव? सच बोलो, आपको लगता है कि परिवार बहुत बड़ी ताकत है? पुण्य तो ताकत लगता है, आपको लगता है कि परिवार भी मेरी बहुत बड़ी ताकत है? बेटेला बधाने पूछ्યું, सासू ने, वहू ने, देराणी जेठाणी ने, तमने बधाने लागे છે ખરી કે પરિવાર એ અમારી બહુ મોટી તાકાત છે? मारे जवाब જોઈએ છે। आपको लगता है कि परिवार बहुत बड़ी मेरी ताकत है? परिवार को आपको लगता है पैसा मेरी बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए आप पैसे को संभाल देते हो? परिवार मेरी बहुत बड़ी ताकत है, तुम परिवार को संभाल लेते हो क्या? मैं भी पॉसिबल मेरे बेटे से मेरी नहीं बनती गुरुदेव, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, बेटा घर से निकल जाए, संभाल लूंगा गुरुदेव। मेरा अपमान होगा, मेरा हंस तोड़ेगा, फिर भी बेटा आखिर तो मेरा है, उनको मैं बचा लूंगा गुरुदेव। सच बोलो, पैसा बचावाना, पुण्य बचावानो, परिवार बचावानो के नहीं? आप मुझे जवाब दो, मैं जानना चाहता हूं आपके मन में परिवार की और तमने शू कहूं? वर्तमान में सर्वत्र एक ज बात है, परिवार ने खत्म करो। जितनी परिवार व्यवस्था तोड़ी शकाय तोड़ते जाओ, भयंकर कोटीનું ષડયંત્ર ચાલે છે અને ષડયંત્રના હિસ્સા તમે પોતે પણ બની ગયા છો। ખાલી એક જ વાત તમને કીધું, અમે બે અમારા બે આ સૂત્ર ચાલ્યું હતું ને, બરાબર છે? મને ખાલી એનો અર્થ કહેશો? બોલો, નહીં બોલો, મારે તમને થોડું ક્લેરિફિકેશન। અમે બે એટલે કોણ? હા હા, બરાબર, હું અને મારી પત્ની, બરાબર? અમારા બે એટલે આવું સ્લોગન જ્યારે પણ તમારા હાથમાં આવ્યું ત્યારે તમે પૂછ્યું ખરું કે અમારા મા બાપ ક્યાં જશે? નહીં, મજાકમાં નહીં કરો। તમે જ્યારે આવું સ્લોગન ઉઠાવ્યું ત્યારે તમે દિલથી પૂછ્યું કે અમારા મા બાપ ક્યાં જશે? અમે બે ને અમારા બે, હું ને મારી પત્ની ને મારા બે બાળક, અમારા મા બાપ ક્યાં જશે? અમે તો વર્ષોથી મા બાપની સાથે રહેનારા, એમના ખોળામાં મોટા થયા, એમને જ અમને મોટા કર્યા, એમને જ અમે ટકાવ્યા, એ ક્યાં જશે અત્યારે? નાગાઈને નફળ થઈને તમે આ સ્લોગન સ્વીકારી દીધા, નાખી દીધા મા બાપને ઓરડે આશ્રમ में। एक जना माँ बाप वृद्धाश्रम में था, मूक्या तो माँ बाप ने वृद्धाश्रम में, एना घरे कोकनु मौत थी तो पूछवा संत ने, मारा साहेब मर्या પછી सूतक कितना दिवस लागे? तो कि जेना माँ बाप वृद्धाश्रम में होय ने जिंदगी भर सूतक ज लागे। કેટલા દિવસ સુધા તારા મા બાપ ને નાખ્યા વૃદ્ધાશ્રમ માં, અને મને પૂછે सूतक कितना दिवस लागे? कहाँ है तुम्हारा बेटा का, तुम्हारी बेटी का, तुम्हारे माँ बाप का? बस सब खत्म। और आज का तो माल जो भयंकर कोटि का चला है, व्यभिचार करवानो पण लग्न नहीं करवाना, लिव इन रिलेशनशिप, मर्जी पड़े त्यारे ठीक है, शेरडीनो साठो मर्जी पड़े त्यां सुधी राखवानो, रस चूसवानो, पछी फेंकी देवानो, लाववानी छोकरीने घरमां, मर्जी पड़े त्यां सुधी ने भोगवानी अने पछी फेंकी देवानी, आ व्यवस्था। कल्चर में कमी गया। गवर्नमेंटे कानूनी मान्यता सुप्रीम आपी दी, लिव इन रिलेशनशिप, मर्जी पड़े नहीं तुम आ बधी छोकरीओ भागी रही है, बिल्कुल बेशरम ने बिल्कुल शरमहीन, कोई अक्कल ज न मळे। एवा नालायक ने नीच छोकरा भाग्या के जेने उभो करीने फेंकी दीधी छोकरीओने। 17 ने 27 टुकड़ा करीने फ्रीज में मूकी दिया। लिव इन रिलेशन जो बीजो तो कहीं
આજે હું ખરેખર આનંદિત છું ડ્યુ ટુ માય ફેમિલી મેમ્બર્સ. હું આજે ખુલ્લા દિલે તમને જાહેરાત કરી દઉં કે હું વ્યાખ્યાન કરી શકું છું, પ્રવચન કરી શકું છું ને, એ બધો ક્રેડિટ જતી તો મારા બધા ફેમિલી મેમ્બર્સને. એ બધા મને ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે રાખે છે ને ત્યારે બધું કરી શકું છું. और एक बात और बताना चाहता हूँ, जन्माष्टमी के दिन गोविंद आला होता है ना, मटकी फोड़वान हुई है, उस दिन तुमने देखा होगा कि 4 मंजिल की रस्सी होती है और ऊपर एक गोविंदा चढ़ जाता है, मटकी फोड़ देता है. बराबर है? बराबर. और पब्लिक में उनका नाम आता है, मीडिया में उनका नाम आता है, टीवी में उनका नाम आता है, मगर वो ऊपर जो गोविंदा फोड़ता है ना, मटकी, क्रेडिट शायद लोग इनको देते हैं ना, मगर उनको पता होता है कि नीचे यदि गोविंदा नहीं होते तो मैं ऊपर पहुंच नहीं पाता, તમારો પરિવાર તમારી સાથે ન હોત તો मैं ऊपर न पहुंची सका. हर गोविंदा का इतना बड़ा रोल है अननोन कि जो आपको ऊपर उठाता है. एक छोकरा, मैंने घना छोकरा है, महाराज साहब मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मैं शर्म नहीं आई. महाराज साहब मारा बापूजी मारे માટે કર્યું છું, મારી મમ્મીએ તું બોલે, છોકરીને કહું તું બોલે, તને જન્મ આપ્યો, તને જીવન આપ્યું, તને સંસ્કાર આપ્યા, તારા કપડા આપ્યા, તારો મોબાઈલ આપ્યો, તું મોડી પડી તો તારી માં રાતના જાગી 15 જગ્યાએ ફોન કર્યા, રડી, પોલીસ ચોકીમાં ગઈ, અને તું એમ કહે મારી મમ્મીએ મારા માટે શું કર્યું. આ કોલેજમાં ભણનારા છોકરાને પૂછો પૈસા ક્યાંથી ના પૂછો, તમારા મા બાપ મોકલે તમને. પપ્પા મારે આની ફી ભરવાની છે, 10,000 મોકલ્યો, પપ્પા ટ્યુશન 12,000 મોકલ્યો. બાપને પૂછ્યું તમે વ્યવસ્થા છે કે નહીં તમારી આગળ? और ये बोलता कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए, शर्म नहीं आती है तुम्हें? मैं जिंदगी में कभी बोल सकता मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए क्या किया? मर जाऊंगा मैं यदि कभी मैंने सोचा तो भी. आज मैं बिल्कुल खड़ा हूं ड्यू टू माय गुरुदेव एंड माय फैमिली मेंबर्स. वाई मी? भगवान मेरी माँ को यदि अबॉर्शन की बुद्धि जगी हो तो मैं आज दुनिया में नहीं होता. वाई मी? लाखों स्त्री अबॉर्शन कराती है, मेरी माँ ने क्यों नहीं कराया? वाई मी? मुझे क्यों बचा लिया? कभी तुम्हें यह प्रश्न आता है क्या? अमिताभ को पूछा था, अमिताभ ने खुद के बाप को पूछा था. तुम्हें ये कथा मालूम नहीं? अमिताभ ने खुद के बाप को पूछा था कि पापा मुझे जन्म क्यों दिया? यदि मुझे सुख नहीं दे पाते, वो टाइम की बात करना चाहते तो अमिताभ ने पूछा था मुझे जन्म क्यों दिया? अमिताभ ने पिताजी ने अच्छा जवाब, तेरे बाप को मैंने कभी ये नहीं पूछा था मुझे जन्म क्यों दिया. હું એમ કહું કે ગુરુદેવ આપે મને દીક્ષા કેમ આપી? નાલાયક છો તો વિચાર ન કરી શકું. और एक बात बताऊं, कोरोना के माहौल में परिवार व्यवस्था का सबको पता चल गया, परिवार क्या होता है. Am I right? टूटा हुआ बाजार, क्राइसिस, और वो टाइम घर में जो भी था, आपकी पत्नी थी, आपका बेटा था, मैं हूँ, और अमेरिका के अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले थे. महाराज साहब ये हिंदुस्तान अकेला टिक गया है ड्यू टू सेविंग. इस देश के पास सेविंग की जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था गुरुदेव मिरेकल है. और सेविंग में भी सबसे बड़ी ताकत आपकी नहीं है, वो इनकी है. मैं दावा के साथ समय नहीं है कि मैं कितना एग्जाम्पल आपको देता हूँ. जब पुरुष टूट गया था ना, घर में कुछ दिखता नहीं था, कुछ था ही नहीं, और वो सोचता था अब करे तो क्या करे. तब पत्नी ने कहा था चिंता मत करना, आप हर महीने मुझे 20,000 रुपये दे दे घर खर्च के लिए, उसमें से कटौती करते करते मैं हर महीने 5,000 बचाती थी. चिंता मत करो, मैंने रखा है, काम पे लगा दो. कितने पुरुष को पत्नी ने हौसला दे के परिवार बचा लिया है. और तुम ये बोलते थे ने मेरे लिए क्या किया? मैंने मेरी 5 साल की उम्र में मां गंवाई थी. बिना मां के बड़ा होना कितना दिक्कत होता है मैं खुद महसूस करता हूं. आज तुम्हारे घर में यदि मां है तो तुम नसीबदार हो. आज तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा है तो भी तुम नसीबदार को बेटा बोलता है.
नंबर 2, वाई मी, भगवान पुण्य मेरा ही क्यों, और भगवान क्या मैंने ऐसा अच्छा काम किया कि परिवार आज भी मेरे साथ है। मैं जब फेल था तब भी मेरे साथ मेरा परिवार था। मैं मुनि जीवन में भी कितना कमजोर था तब भी मेरे गुरुदेव और मेरे सब गुरु भाई मेरे साथ थे। रत्न समान डरता नहीं। पर महाराज भणा तो नहीं अमे छे, महाराज विहार नहीं तो अमे छे। कभी कभी चलते चलते पैर में से खून निकल जाता था, मेरी आंख में आंसू आ जाते, बैठ जाता, तब सवर्ती ने बता दिया, रत्न में चिंता नहीं करता, आવું થાય, ચાલો હાથ પકડી પકડીને આપણે આગળ નીકળી જઈએ અને इन કિલોમીટર અમારા વિહાર કરાવ્યા. ક્રેડિટ ગોઝ ટુ માય ફેમિલી મેમ્બર્સ. મને તમે ગંભીરતાથી જવાબ આપો, પૈસા ને પુણ્ય બચાવવા જોઈએ, પરિવાર સાચવી લેવો જોઈએ કે નહીં? What is your mentality? और परिवार तभी संभल पाएगा जब आप इनको क्वालिटी टाइम देते हो। तो मैं आगे चलना चाहूंगा, मगर आपके मन में ये परिवार की टॉप प्रायोरिटी है क्या मगज में? पढ़ी लिखी पब्लिक है इस वल्लभ विद्यानगर की, पूरी जिंदगी भर तक पैसा पैसा तुमने किया, परिवार कभी किया तुम? अभी मैं बस आगे चलना चाहता हूं। अभी मैं बड़ौदा जाके आया, एक लड़का 14 साल का मेरे सामने बैठा था, ही वाज द ब्लाइंड। 4 साल की उम्र में उनकी आंख चली गई थी, और बड़ौदा में वो इनके माता पिता और दोनों मेरे सामने बैठे थे, और माँ एडवोकेट थी बड़ौदा की। करीबन 15 लाख की इनकम हर साल। और माँ बाप और लड़का 14 साल का बेटा जब मेरे सामने बैठा तब माँ ने बता दिया, माना साहब ये जब ब्लाइंड हो गया पता चला ना, मैंने सोचा मेरी कोशिश बेटा आया है, किसी भी कारण से वो ब्लाइंड हो गया, गुरुदेव अमेरिका तक रिपोर्ट मंगला, मगर सबने बता दिया कुछ रिकवरी 100% होने वाली नहीं है, यही स्थिति में उनको निकालना है। तब गुरुदेव मैंने सर्विस छोड़ दी। 15 लाख मारू पैकेज गुरुदेव करीब लगभग ये जीवन भर माटे छोड़ दी। तो अभी देखो तुम, ये बात सुनने के बाद मैंने मेरे सामने जो 14 साल का लड़का बैठा था उनको पूछा, दोस्त आंख चली गई है, 10 साल से तेरे पास आंख नहीं है, क्यारे तने एम थाय कि आखी जिंदगी केम काढीश आंख विना? हजी तो मारी उम्र ज 14 वर्ष, आटला आवनारा दिवसोमां तो तारी जिंदगी केम काढीश एवुं तने क्यारे दुख थाय? मारी जिंदगीना 76 वर्षना दीक्षा मारी उम्रमां आवो जवाब आज सुधीमां कोई छोकराए नथी आप्यो। एवो जवाब मारी आंखमां आंसू, एना मा बापनी आंखमां चौधर आंसू, अने मां तो ध्रुसके रड़े। तमे समझो शुं जवाब हतो? मैं एने ज्यारे पूछ्युं कि दोस्त आ जिंदगी पर तारे अंधापो रहेशे, एनी तने क्यारे एवुं नथी थयुं कि मारी आखी जिंदगी हूँ शू करीश? अने छोकरा ने खबर नथी, एने हाथ लांबो कर्यो, मारो पग आव्यो, मारो पग एने पकड़ी दो, एटलो नजीक बैठो तो। मारा साहेब एक बात करूँ, आना आ माँ बाप मळता होय ने तो जन्म जन्म आंधळो थवा तैयार छे। आवता जन्म आंख न मळे तो चाले, माँ बाप तो आज જોઈએ। आज मैं भी मेरी ओर से इतना कहूंगा कि जब तक मेरा मोक्ष न हो तब तक शक्ति नहीं मिले तो चले, गुरुदेव तो यही चाहिए। क्या दिया होगा वो गुरुदेव ने कि जिसके हिसाब से मैं आज वो मांग रहा हूं। दिलथी कहूं छूं, दोराथी छूटी जता पतंगनु कोई भविष्य नथी होतुं, परिवारथी छूटी जता माणसनु कोई भविष्य नथी होतुं। पतंगने आसमानमां उड़वुं होय तो दोरा साथे बंधाई रहेवुं जरूरी छे। આપણે જીવનમાં મસ્તીથી જીવો તો પરિવાર સાથે જોડાઈ રહેવું અતિ જરૂરી છે।
भगवान पुण्य मेरा ही क्यों, सेकंड नंबर परिवार मुझे ही क्यों मिला। हजारों लाखों बच्चे रास्ते पे बिना परिवार घूम रहा है। और नंबर 3, भगवान इतने लोगों का प्रेम मुझे ही क्यों मिल रहा है। नंबर 3, नंबर 1 आप बोलो, नंबर 1 पुण्य, नंबर 2 और नंबर 3 प्रेम। अब रास्ते में गिर गई, आपका परिवार आपके साथ नहीं है, बाइक की टक्कर लगी, तुम गिर गए और 4 आदमी दौड़ते दौड़ते आपको उठाया, हॉस्पिटल में जा, आपके जेब में से मोबाइल नंबर निकाला, आपके बेटे को मैसेज दिया, आपके पिताजी, होता है कि नहीं ऐसा। आठों में तो प्रेम गुरुदेव, मैं खुद पागल हूं। हजारों किलोमीटर की साधु में यात्रा की और हर संघ का मुझे जो प्रेम मिला है और आज भी मिल रहा है, ये आप इतने लोग दौड़ते दौड़ते कहते हैं ये प्रेम क्यों मुझे मिल रहा है, क्यों। चाहे 500 करोड़ के मालिक को इतना प्यार आपको नहीं मिला जितना प्यार मुझे इतने साल तक मिला है और मिलते रहता है। वो चाहे लड़की हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई माता हो, कितने लोग मेरे लिए क्या क्या करते मुझे मालूम नहीं है, जब बताते तब पता चलता है। एक बहन आई थी नौनजई, मैं बोपल में था, बोपल अहमदाबाद, मेरे सामने बैठी, महाराज साहब कितने साल से आपके प्रवचन सुनती हूँ, पहली बार आज आपके दर्शन हो गए। मैंने बोला महाराज साहब एक बात आपको बताऊं क्या, तुम ये मानते हो महाराज साहब आपकी ताकत क्या है, ये ताकत मेरी वो प्रवचन की ताकत नहीं। और वो माने बहन थी शायद ऑन द एज ऑफ 50 अबाउट, लविंग અને સાકર બે કાઢ્યા, પોતાની આગળ પર્સ હતી, એ પર્સમાંથી લવિંગ અને સાકર કાઢ્યા, मैं देखते रहा। बिफोर टाइम में बोलना नहीं चाहता था कि मेरे सामने लविंग और शक्कर क्यों, અને બેને લવિંગ અને સાકર કાઢી કીધું મારા સાહેબ આ લવિંગ અને સાકર મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી બહુ ગળું સારું ચલાવવા માટે મોઢામાં સાહેબ લવિંગ અને સાકર મૂકીએ તો ગળું વોઇસ બોક્સ સારો રહે એવું હું સમજી છું। મારે એમને કહેવું હતું કે બેન અત્યારે મારે જરૂર નથી, મને એવું લાગ્યું કે મને વરાવવા માગે છે, આપવા માગે છે, પણ હું બોલું એની પહેલાં બેને કીધું મારા સાહેબ મારે આપને ખાલી એટલું જ કહેવું છે, આંખમાંથી આંસુ, હાથ જોડેલા, રૂમાલ કાઢ્યો, આંસુ લૂછ્યા, અને મેં કીધું બોલો બેન શું કહેવું છે। મારા સાહેબ આ લવિંગ અને સાકર હું શિવજીને માનું છું, શિવજીને, મારા આરાધ્ય દેવ શિવજી છે, એમનો ફોટો મારા છે ઘરમાં રાખ્યો છે, અને શિવજીની સામે મારા હાથમાં લવિંગ અને સાકર રાખીને 1 કરોડના જાપ કર્યા છે કે મારા ગુરુજીનું વોઇસ બોક્સ સારું રાખજો। આ પ્રેમ 1 करोड़ का जाप इस वॉइस बॉक्स के लिए, वाई मी। कितने लोगों का आपको प्यार मिला, कितने लोगों का प्यार तुमने कभी महसूस नहीं किया। वर्षों पहले करीबन बैंड स्टैंड के चातुर्मांग में 35 साल हो गए, और मेरा प्रवचन ज्यादा दानी सदन है वालकेश्वर में, वहां धर्मदास भाई थे 35 साल पहले की बात। और वो भाई गए, शाम को मेरे पास आए, माना साहब ये 10,000 रुपया बिफोर 35 ईयर्स, 10,000 रुपया गुरुदेव आपको जहां उचित लगे उसको दे दो अच्छे कार्य में। मैं बोला ठीक है, आप बोलते तो 10,000 रुपीज चैरिटी में दे तो दूंगा, मगर धर्मदास भाई जानना चाहता हूँ 10,000 क्यों। माना साहब आपको शायद हंसी भी आ सकती है, चाहे मुझे बेवकूफ भी मान सकते हो, मगर आज प्रवचन सुना અને પ્રવચન સાંભળ્યા પછી તમે જો લોકો શું કમાલ કરે છે પ્રેમના માટે શું ચમત્કાર, શું નક્કી કરે છે।
आज प्रवचन में था, प्रवचन सुनने के बाद जब निकला ना, आपका सर्वमंगल हो गया, सब जाते रहे, और तब मेरे मन में एक सोच आई, कभी कह रहे आवो विचार करे मानस है, तब मेरे मन में एक सोच आई, तो मैं निकल तो रहा हूं, मगर निकलने में एक बार पीछे मुड़ के देखूंगा, रिपीट, जा तो रहा हूं, बैंड स्टैंड का हॉल था, प्रवचन से निकल तो रहा था, मगर गुरुदेव उसी टाइम में सोच आया, एक बार पीछे मुड़ के देखना है, और यदि पीछे मुड़ के देखा और गुरुदेव की नजर मेरे पे आई, तो आज का पूरा प्रॉफिट गुरुदेव के नाम पर। गुरुदेव 2 मिनट अपनी नजर पड़ी मारी पर, आत्मा प्रॉफिट अपना नाम है। एक आंख अपनी हमारी ऊपर पड़े, साहब हमें धन्य दीजिए, ये प्रेम क्यों मिला मुझे, मैं पागल हूं, मेरे जीवन में कोई शिकायत नहीं, मैं अपूर्ण हूं, मैं अज्ञानी भी हूं, मगर नो कंप्लेन एट ऑल। कितने लोगों का प्रेम मिला आपको, मुझे हाँ बोलो कि ना बोलो, मिला है कि नहीं, अभी भी मिल रहा है ना, तो फिर आपको ये अभी पागलपन जो मैं इतना पागल में महसूस करता हूं, आप क्यों नहीं करते हो? मैं तो इतना कहना हूं, ये 3 चीज को संभाल के रखना, पुण्य, परिवार और प्रेम। ऐसा कोई काम करना मत कि सामने वाले आपको प्रेम देने के लिए सोचे, नालायक लागे छे। वाई मी, और नंबर 4, परमात्मा मुझे ही क्यों मिले। पुण्य, परिवार, प्रेम और परमात्मा। नाम आप चाहे उनका कोई भी दो, शंकर, महादेव, कृष्ण, मोहम्मद, पैगंबर, यीशु ख्रिस्त, नाम कोई भी दो, मगर इनविजिबल फोर्स है। आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, एक्सपीरियंस होता है। ऑक्सीजन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, मगर वी आर लिविंग, वो पता चलता है कि कुछ है कि जो हमें जिंदा रखता है। बराबर है? साच बोलो, जे लोग एम के मैं प्रमाण જોઈને પૂછ્યું ઓક્સિજનનું પ્રમાણ શું છે, ઘણા એવા માણસો આવે ને સાહેબ દેખાડી દો હોય તો બધું ઓક્સિજન દેખાડી દે। ઓક્સિજન આંખેથી દેખાતો નથી, પણ આપણે જીવીએ છીએ એ જ પ્રમાણ છે। ભગવાનને આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ આપણા મનમાં સારા વિચાર ચાલે છે, એ જ ભગવાન હોવાની સાબિતી છે। सच बोलो, आपको लगता है भगवान आप मुझे मिल गए? भले किसी भी कारण से मुझे मिले, मगर आज आप मुझे मिले हैं। और एक बात कह दूं, परिवार आपके पास है तो आप यदि किसी के परिवार के हिस्सा बन के बैठे हो, परिवार आपके पास यदि परिवार, यदि आप परिवार के सदस्य हो, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पिताजी, आपकी माँ, यदि आप हो, तो मैं 3 आउटपुट की बात करना चाहता हूँ। तमने तमारा माटे तमारा चरणे कोईए तमारू माथुं मूक्युं, कोईए पण तमारी पत्नी, तमारो बाबो, क्यारेक तमारी मम्मी पण के बेटा तू छे, तो 3 चीज खास आपजो। परिवार जेने पण साचववो छे एने 3 चीज आपता रहेवुं जोईए। नंबर 1 स्मित आपो, नंबर 2 समाधि आपो, और नंबर 3 स्पर्श आपो। स्मित, समाधि और स्पर्श आपे ए परिवार छे। साच बोलो, कितनी बार आप्युं? तमारा परिवार ने स्मित केटली बार आप्युं? એને સ્પર્શથી કેટલો નરડાવી દીધો? ખાલી ઘરમાં 15 જણા રહે, પરિવાર નથી, આ 3ની આઉટપુટ ચાલ્યા જ કરે।
જરા હતા આવી જા અને માથે હાથ ફેરવે ધન્ય થઈ જાવ. કોમેન્ટ નહીં કરતા, પણ તમને કહું, તમને સ્ક્રીનમાં રસ છે, સ્ક્રીનમાં રસ નથી. સ્ક્રીન છે ને આખો દિવસ સ્ક્રીન ગઈ. ક્યારે તમારા બાબાને તમે પ્રેમથી સ્પર્શ આપ્યો છે પૂછશો? દૂરથી વાત. કોલેજ જા, સ્કૂલ જા, ટ્યુશન જા, જે માગો હોય તે માગી લે, લેપટોપ માગી લે, મોબાઈલ માગી લે, ખટખટ નહીં જોઈએ. एक लड़का था जिसने अपने बाप को कहा, पापा कभी तो स्टोरी को पापा. और एक दिन बाप ने अपने बेटे को गोद में बिठा के स्टोरी की. बेटा खुश, पापा कितनी मस्त स्टोरी की आपने, मैं तो पागल बन गया. और दूसरे दिन बाप जब आए तो बाप बेटे ने बोला, पापा स्टोरी. अभी देखो बाप को लगा एक दिन सुनाई रोज की झंझट. આ પરિવાર છે, તમે દીકરાના બાપ છો, તમારા બાબાને સ્પર્શ આપવામાં, પ્રેમ આપવામાં તમે झंझट मानो, झंझट. दूसरे दिन भी सुना दी, तीसरे दिन भी सुना दी. तब आपको लगा कि बेटे के लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. ये तो रोज का आदत पड़ गई और बिजनेस में जाने का होता नहीं है, ये क्या. और एक व्यवस्था बना दी. और चौथे दिन बाप ने, बेटे ने जब डिमांड की पप्पा स्टोरी, बाप ने कैसेट दे दी. बेटा मेरी ही आवाज में स्टोरी है. 1 घंटा तो तू मेरी गोद में बैठता था, मैं स्टोरी कहता था ना, वही स्टोरी, वही मेरा आवाज सुन लेना. नई स्टोरी बिल्कुल. बेटा बाप के सामने देखना, पप्पा कैसेट में स्टोरी है, मेरा आवाज. जिस स्टोरी के पीछे तो पागल है, वही स्टोरी तुझे सुनने की मिलेगी. और बेटे ने गोद में, पापा तो थे नहीं, बाजू में कैसे चालू करके स्टोरी सुनी. और स्टोरी सुनते सुनते रोते चला. और पिताजी अपने बेडरूम में से देखते थे कि बेटा का प्रतिक्रिया क्या होती है. और बेटा रो रहा था तो समझ में नहीं आया रोता क्यों है. देखने के बाद भी बाप बेटे के पास नहीं गया. अंदर सिवाय केम रड़े છે કેમ, સ્ટોરી તો સાંભળી મારી, મારો અવાજ છે. आंसू के साथ बेटा आया. पिताजी के गोद में झुकने के लिए वो तैयार था, चाहता था, मगर पिताजी का चेहरा देखा, उसको लगा नहीं, इस टाइम नहीं है झुकने का. तब आपने बेटे को पूछा, स्टोरी सुनना चाहता था ना? तो स्टोरी तो मैंने सुना दी, मेरा ही तो आवाज था, और तो किसी का आवाज नहीं था. पप्पा एक बात कहूं, आ कैसेट में तमारो अवाज तो मळ्यो, तमारा हाथनो स्पर्श क्या है पप्पा? हूँ तमारा गाल पर हाथ फेरवी स्टोरी सांभळतो तो, पप्पा ए स्पर्श क्या है? पप्पा मने स्टोरी में रस नहोतो, हूँ स्टोरी नामे तमारा स्पर्श ने पामवा मांगतो तो माटे स्टोरी कहतो. तमे स्टोरी पकड़ी, मारे तमारो स्पर्श जोईतो तो पप्पा आपो मने. आ स्टोरी तो मने जेने डिपार्टमेंटल स्टोर में पण मळी रहेशे. જોઈએ તેટલી કેસેટો મળી જાય. પપ્પા તમે ચિકાર પૈસાના માલિક છો, આના કરતાં 5000 સ્ટોરી લાવીશ, પણ પપ્પા મારે તમારો સ્પર્શ જોઈએ છે, એ આપો પપ્પા. અને બાપની આંખમાંથી આંસુ છે. स्मित, स्पर्श और समाधि आपे वो परिवार है. एक बार अपने आप को चेक कर लेना, कितने दिन हो गए आपके परिवार को आपने स्पर्श नहीं दिया होगा. कॉम्प्रोमाइज नेचर आपको ढाढ़स बंधा देता है. जैसे मेरे बड़े भाई ने मुझे बता दिया, फेल हुआ, अगले साल मेहनत करना, ये क्या था? कॉम्प्रोमाइज नेचर. डरना मत, नहीं, जिंदगी कोई खत्म नहीं हो चुकी, अगले साल देख लेना. और मैं बताऊं, नाउ आई एम 76, मगर वो टाइम में 62 का था जब दिल्ली से वापिस आया था.
अनंत उपकारी पूज्यपाद गच्छाधिपति जयगुरु सिंह महाराज बम्बई में थे। संसद में 3 बार जाके आया, वो तो सब कुछ बात फिर कभी करूंगा। और जैसे मैं बम्बई के नजदीक आया तो गच्छाधी, और ऐसे माहौल था कि मैं दिल्ली से आ रहा था तो महाराष्ट्र का सीएम, मैं भी पॉसिबल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सब कुछ लेने के लिए आने के लिए, तब मैंने गच्छाधिपति को पत्र लिखा था, साहब दिल्ली दी वड़ा प्रधान आवे के राष्ट्रपति आवे के महाराष्ट्र मुख्य प्रधान आवे, મને માં રસ નથી, મને એક જ રસ છે, આપના ખોળામાં માથું મૂકવા મળે। मैं 4 साल दिल्ली में 50 डिग्री की गर्मी के बीच में आया हूँ, कोई पॉलिटिशियन के आशीर्वाद नहीं, बस આપના ખોળામાં માથું મૂકવા મને મળે અને આપનો હાથ ऑन द एज ऑफ 62 मैं स्पर्श के लिए पागल था और अपने हर प्रोग्राम गच्छाधिपति ने कैंसिल करके मेरी विनती स्वीकार कर ली। मेरा एक साधु मेरे कहने से गया है और वो और तो कुछ नहीं चाहता है, मिष्टान नमकीन नहीं चाहता है, बस आपकी गोद में सर रखने का मौका मिले, मैं मानूंगा मेरा दिल्ली सफल हो गया। और वो माहौल जिसने भी देखा है, पूरा उपास है, बालकनी रोड खचोखच भरा था कि गुरुदेव कैसे गोद में सर रखते हैं और आपके तीर्थंकर तुल्य गच्छाधिपति इनको कैसे स्पर्श देते हैं। वो देखने के बाद सबकी आंख नम थी। 62 वर्षे मारे स्पर्श જોઈએ છે, તમે ભૂલી ગયા બધું? પૈસા આપીને તમારા પરિવારને તમે રખડતો મૂકી દીધો, સારી કોલેજ અને સારી સ્કૂલ આપીને રમાડી દીધો, બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ, તમારી કોઈ જવાબદારી જ નથી। વાય મી? पुण्य, प्रेम, परिवार और परमात्मा, सच बोलो। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के प्रवचन को मैं विराम तो दे दूंगा। आपके परिवार को, आपके बेटे और बेटी को तुमने भगवान का एड्रेस कब दिया? यहाँ बैठने वाली माता बहन सबको, आपका बेटा स्कूल न जाए तो चलेगा कि भगवान के मंदिर नहीं जाकर चलेगा? 2 में से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मंदिर में बैठे रहना, स्कूल कॉलेज उनकी जो भी जिम्मेदारी होगा बराबर है, मगर आपने कभी बाई फोर्स किया कि परमात्मा के मंदिर में एक बार तो सर टेक का मत्था टेक देना है? मेरी बात बताओ, मेरे जिंदगी का 2 बड़ा राज, दीक्षा के पहले रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर तू कभी नहीं रहेगा, और यदि रहा तो घर से बाहर गेट आउट। आफ्टर 9:30 PM घर से बाहर तू नहीं रहेगा। और जिस दिन परमात्मा की पूजा की नहीं, उस दिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। 19 साल की उम्र तक इस संविधान को मैंने बराबर संभाल के रखा। 5-6:40 की ट्रेन पकड़ के मैं जा रहा था, सुबह उठना, मंदिर में जाना, पूजा करना, सब दिक्कत थी, मगर पिताजी का फोर्स था, इनके बिना पानी पीने को नहीं मिलेगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 चीज थी, रात को 9:30 बजे के बाद घर से नहीं बाहर जाना, इसलिए गलत कंपनी से बच गया, और परमात्मा की पूजा रोज करना, इसलिए अच्छी कंपनी का एक माहौल बन गया। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, आपके बेटे और बेटी को तुमने फोर्स किया 2 मिनट तो 2 मिनट मंदिर में जाकर के बस सिर झुका के वापिस आना, फोर्स किया क्या? वाई नॉट? बस मैं प्रवचन को विराम देने के पहले थोड़ा पूछूं, वाई नॉट? ये जो कुर्सी में बैठे उनको बोला वाई नॉट? कोई जवाब? बोलो। नहीं, कोई कारण तो मैंने जानू नहीं, तुम्हें आवो फोर्स कंपल्सरी एने माटे नहीं कर्યું, એની પાસે કારણ શું?
क्यों हम इसमें चले? एक बात इनको बोल सकते हो, बेटा तू अनमेच्योर था ना, तब फोर्स करके मैंने तुझे स्कूल में भेजा। तू मेच्योर होता, तय करता तो फिर तू बेवकूफ रहता। अभी साच बोलो, छोकरो अनमेच्योर होतो त्यारे परणे तो मैंने स्कूले मोकल्यो? મને હા પાડો ના પાડો? એ કેજીમાં તો ત્યારે સ્કૂલની ખબર હતી શું છે? એ રડતો તો તોય મોકલ્યો, નહોતો જવા માગતો તોય મોકલ્યો, લાફો મારી તોય મોકલ્યો। એટલે ત્યાં એને છોકરાને તમે દલીલ ન પૂછી કે તમને અક્કલ નથી તો મને સ્કૂલે કેમ મોકલો છો? અને મંદિરમાં જવાની વાત આવે ત્યારે છોકરો તમારી દલીલ કરે કે આ ઉંમરે મને શું કામ, આ ઉંમરે તમે પરાણે રડતો હતો તો સ્કૂલમાં મોકલ્યો, તો રડતો હતો તો મંદિરે કેમ ન મોકલ્યો? એવું છે કે આજે હું મારા સંતાનને એમ કહું છું કે અમારા મા બાપે અમને આ સમજ નથી આપી, માટે અમે લેટ જાગ્યા, અત્યારે અમને સમજ આપે છે માટે તમને જગાડી છે, છતાં એને જાગ મારે એમ કહેવું છે, તમે મા બાપની આગળ વાત નહીં, ખાલી એક હવે તમે મને કીધું એટલે કહું સાચું બોલો, તમે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને જે પૈસા ચૂકો, આમ દિલથી ચૂકો કે પરાણે ચૂકો? તમને કહી દો ખરા કે મારી ઈચ્છા નથી, આઈ ડોન્ટ લાઈક, એટલે બીજી વાત કરું, તમે યુનિવર્સિટી ચલાવો છો ને, યુનિવર્સિટીનું સંવિધાન છે ને, કોલેજનું સંવિધાન, સ્કૂલનું સંવિધાન, મેડિકલ સંવિધાન, એડવોકેટ સંવિધાન, ક્રિકેટનું સંવિધાન, કુસ્તીનું સંવિધાન, મારું સંવિધાન, દેશનું સંવિધાન, તમારા પરિવારનું સંવિધાન શું? તમારા ઘરમાં તમારા પરિવાર માટે તમે કોઈ નિશ્ચિત વ્યવસ્થા બનાવી છે કે આ સંવિધાન છે, સંવિધાનને ક્રોસ કરીને ઘરમાં કોઈ નહીં જીવી શકે? મારા પિતાજીએ મારા માટે સંવિધાન હતું, તને ગમે ન ગમે, તને ફાવે ન ફાવે, લોજિકલી બેસે કે ન બેસે, શાળાનું પેલા ઘરની અંદર અને પરમાત્માને બીજા કમ્પલસરી, ધેરફોર આઈ એમ હિયર। તમારા ઘરમાં સંવિધાન બોલો ને, રાતના 12 વાગે ઘરની બહાર રખડતા હોય તમે પૂછી ન શકો બાપ તરીકે બેટા ક્યાં ગયો તો? મોબાઈલમાં બ્લુ ફિલ્મ જો તમે પૂછી ન શકો શું જુએ? તમારી આંખ સામે તમારો છોકરો ગર્લફ્રેન્ડને મોબાઈલથી ગમે તેવી વાત કરે તમે પૂછી ન શકો ઘર છે તમારું? એક સંસ્થા બી દેખાડો સંવિધાન વિના ચાલતી હોય, ઘરમાં સંવિધાન શું છે તમારી આગળ? આ નહીં ખમાય, આ નહીં જોવાય, આ નહીં ચાલે, બિલકુલ નહીં ચાલે, મારું ઘર છે, કેમ તમે ઘરમાં સંવિધાન મૂક્યું? યુનિવર્સિટીના સંવિધાનને ક્રોસ કરી તમે ગેટ આઉટ કરી શકો છો ને? આ નહીં ચાલે, અમારી વ્યવસ્થા છે, આ ઘરની કોઈ વ્યवस्था नहीं तुम्हारी, मारी अगर तुमने खबर नहीं दी। मैं अभी जो प्रवचन करता हूँ ना, मेरी मर्जी से नहीं करता हूँ, भगवान महावीर ने मेरे लिए भी संविधान रखा है, ऐसा ही बोलना है। હું બલગલ ચોક બોલી શકું અહીંયા? મા બેન સામે ગાડી બોલી શકું? પ્રવચન છે, હું જે ઠીક લાગે તે બોલું નહીં, મારે એ જ બોલવાનું છે જે ભગવાન મહાવીર અને મારા ગુરુદેવ મને અનુમતિ આપી છે તે જ। તો મારા જેવો પણ આ ઉંમરે પણ સંવિધાનને વફાદાર રહી ચાલે, તમારા ઘરમાં કોઈ સંવિધાન નહીં? તમારો દીકરો ગર્લફ્રેન્ડ સાથે વાત કરે ત્યારે બાપને પૂછીને કરે છે? તમે કહો કે મને ગમતું નથી કે તમને ન ગમે, તમારી મરજી, મારે કરવી છે, ત્યાં તમે કઈ નથી કરી શકતા। અને બહુ ગુજરાતી ભાષા ગમે તેવી ભૂલ કરે તમારે એની કહેવાનું ગાવું છે ને, ઘરે લઈ જતા દીકરા એટલે મારી ઘરનો બાપો મૂકવા આવે તેને કીધું લાખો મારીને લાકડીએ મારી ઘરે જો મૂકી જાઓ, એ ટાઈમ હતો। આ વ્યવસ્થાથી આજે વ્યવસ્થા ખતમ થઈ ગઈ। નાબાઈ અને નફરત કરે દીકરો, છોકરો કાંઈ પણ કરે એ બધું કરવાની છૂટ, અને કોલેજના પ્રિન્સિપલ ટીચર કાંઈ કાંઈ। અને નાગપુરમાં પ્રિન્સિપલને મેં પૂછ્યું, मैं तो अभी व्यवस्था सुने તમે બળવો કેમ ન કર્યો? મારા સાહેબ આપણે સીધી વાત કીધી, એના મા બાપને વિરોધ નથી, છોકરાને વિરોધ નથી, એક મને ડાકુ કે ગુંડા પાકે અમારા બાપને સમજાય, આ જવાબ હતો। અને મેં તમને 2 દિવસ પહેલા પણ કીધું, ઇન્દોરની કોલેજની એક છોકરો માત્ર 5 વખત માર્કશીટ લેવા ગયો, પ્રિન્સિપલ
એવા પવિત્ર પ્રિન્સિપલ શિવોદર મેડમ અને એ છોડને પાણી પાતા હતા, કોલેજમાં છોડને બગીચામાં પાણી પાતા હતા. 5 વખત માર્કશીટ લેવા ગયો અને પ્રિન્સિપલે કેટલા કન્સર માર્કશીટ આપવામાં થોડી ડીલે કરી, કાલે આપું છું, અને 5 વખત ગયા એ ન મળ્યું તો પ્રિન્સિપલ પાછળથી છોડને પાણી પાય છે અને છોકરો કારતલનો ડબ્બો લાવી નાખી અને આખા જીવતા પ્રિન્સિપલને સળગાવી 4 દિવસ ચલાવ્યું. प्रोफेसर दवे थे प्रिंसिपल, आज भी मुझे याद है. मालूम है वो कभी कभी कोई लड़का गेट आउट भी टीचर कर सकते थे और वो प्रिंसिपल राउंड मारने के लिए निकलते थे. तब एक बजाय थोड़े निकलो थे ना हमारा स्कूल में प्रिंसिपल राउंड मारवा निकलता था અને છોકરો જો ક્લાસની બહાર પૂરું થઈ ગયું. અને આજે મને યાદ છે તમે સર પડતાની ટોપ અને જ્યારે બહાર રાઉન્ડ મારવા નીકળે ને ત્યારે પેટ આગળથી પટ્ટો કાઢીને હલાવતા પતી ગયું. 10મીમાં ભણતો દીકરાનું ગેટ આઉટ ક્લાસમાંથી ગેટ આઉટ. ભગવાનની વિનંતી કરતો કે આજે પ્રિન્સિપલ ન નીકળે તો આવે અને આવ્યા પટ્ટો હલાવવા ઠોકી દે. એકદમ નથી ગયા ડરતો હતો પણ એવું તો કોણ જાણે પ્રિન્સિપલ મૂડમાં છે. અને તેની પછી એ વખતે દીક્ષા લીધી ને એમને ઉષા ઠોકી દીધી. આજે યાદ છે પ્રિન્સિપલે આમ પટ્ટો ખરો પણ મને કે એક કામ કરું ઉષા ઠોકીમાં ઢોરકી પડતો મોના आप प्रेम तो प्रिंसिपल. मैं दुनिया की बात नहीं करना चाहता हूँ. आज मेरे सामने जो भी बैठे हैं सबको कहना चाहता हूँ, बड़ी पीड़ा वेदना और सहानुभूति के साथ पुण्य परिवार प्रेम और परमात्मा 4 चीज यदि मिली है, एक शिकायत वो करुणा ना करना तारी करुणा नो कोई भाग नहीं. मारी भूलो ना भूलना तारी करुणा नो कोई भाग. यदि ये ताकत मेरे पास और आप सबके पास आ जाए, दुनिया को मैं सुधार भी सकता हूँ. मगर किसी भी हालत में पूछो गुरुदेव दिया कोई कंप्लेंट नथिंग. 4 चीज. पहली बात पता चला हमारा फोकस नहीं था और इतनी बड़ी ताकत जो हमको मिली, पुण्य मिला, परिवार मिला. सैकड़ों रातों 12 बजे लेट जाते हो, परिवार में चिंता हो जाती है. तब मोड़ा जाओ तेरे चिंता करना और परिवार को चले तुम्हारो आ मोटी हैसियत है तुम्हारी. તમારું પાકીટ ગુમ થાય તમે એકલા ચિંતા કરજો, તમે ગુમ થાવ આખો પરિવાર ચિંતા કરે. આવો પરિવાર જો તમને મળ્યો હોય ચરણમાં ચૂકી અઠવાડિયે 10 દિવસ એકવાર કહો પપ્પા ક્યારેક તો પ્રેમ આપો, વાત્સલ્ય પ્રેમ આપો છો, મારે તમારો સ્પર્શ કરીએ છીએ. દીક્ષા દિવસથી માંડીને આજ સુધીમાં અમે આ સ્પર્શની મૂડી પર જીવ્યા છીએ અને જીત્યા છે અને ટક્યા છે. ફરી વાર કહ્યું કંઈ પણ તમારો દીકરો સારું કરે થોડું સ્મિત આપો. તમારા સંપર્કમાં અને સંવાદમાં હોય ત્યારે સ્પર્શ આપો અને કોઈ પણ કામ સાથે વિદેશમાં કોઈ પણ પાસે જ્યારે તૂટલ પડ્યો ત્યારે સમાધિ આપો. સ્મિત સ્પર્શ અને સમાધિની ત્રિપુટી તમારા દીકરાને ક્યારે સુસાઇડ કરવા માટે તૈયાર નહીં કરે. બેટા હું છું, ખાલી એટલા શબ્દ દીકરાને ટકાવી દે. આટલું બધું ઉત્તમ જીવન
માત્ર થોડું ફોકસ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. બધું એટલું જ કદાચ આપણી થિંકિંગમાં આ નથી વાત આવી તો થોડીક વાર થિંકિંગમાં વાત આવે અને પછી જે જીવન પૂછકાશે ને તમને એમ લાગશે કે કમાલ છેલ્લી વાર એ ડોશીમાં પહેલી વાર વિમાનમાં મુસાફરી કરતા હતા. ફર્સ્ટ ટાઈમ. હવે વિમાન તો શું કરે હા ઉકળી જાય ત્યારે શું થાય સામાન્ય પહેલી વાર ડોશીમાં વિમાનમાં મુસાફરી કરે અને એ હોસ્ટેસ બેલ્ટ લઈને આવે. આ ડોશીમાને ક્યાં વ્યવસ્થા ખબર નહીં એટલે ડોશીમાને બેલ્ટ બાંધવાની મહેનત કરી દે. ડોશી એર હોસ્ટેસ કે તને ડર લાગતો તો હું બાંધી દઉં. તમારા ચહેરા ઉપરનું સ્મિત સ્પર્શ અને સમાધિ પરસ્પરસ એકબીજાને તાકાત આપશે. ઈચ્છું છું આવી તાકાત આપણને બધાને મળે. અનંતકારી ગુજરાત ગુજરાતી કૃપાથી 400મું પુસ્તક ઘણા બહાર પડ્યું જેનું નામ જ હતું સ્પર્શ. જો બાઇડન પછીના ત્રીજા નંબરના એમના પુસ્તકનું અમેરિકામાં વિમોચન કરતા આ પુસ્તક વાંચ્યું અને મને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે મારું ચાલે તો અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં પુસ્તક અભ્યાસ કોર્સમાં મૂકી. 4 દિવસ પહેલા મહારાષ્ટ્રમાંથી એક જણનો 10 લાખ રૂપિયાનો ઓર્ડર આ પુસ્તકમાં 10 લાખ. મને ખ્યાલ છે વાંચન રૂચિ તમારી લગભગ વેન્ટિલેટર ઉપર છે. કોઈ વાંધો નથી. આજે વ્યાખ્યાનમાં કીધું બી ઘણી છાપીઓ અલગ અલગ 10 સબ્જેક્ટ એની ઘણી છાપીઓ. કોઈ ચીપ પબ્લિસિટી માટે નથી કહેતો પણ તમને એમ લાગે કે આખી અમારી અમારા દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત અમને દુઃખી નહીં કરી શકે. આવું પુસ્તક ખાલી 200 કોપી અવેલેબલ છે. ત્યારે 300ની કિંમતનું ખાલી 50 રૂપિયામાં ખાલી 50 તમારા મિત્ર માટે, વેપારીઓ માટે, યુવાનો માટે, દીકરા અને દીકરી માટે જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં મૂકવાની વાત અમેરિકામાં થતી હોય એક સાથે 16 ભાષામાં પુસ્તક ચાઇનીઝ, હિબ્રુ, સંસ્કૃત, ગુજરાતી, હિન્દી, મરાઠી, કન્નડ, તમિલ, બંગાળી, સ્પેનિશ બધી જ ભાષામાં પુસ્તક બહાર પડે. અત્યારે ખાલી આજ અવેલેબલ છે. તમને અનુકૂળતા લઈ શકશો. 3 દિવસ વિદ્યાનગરમાં ખૂબ આનંદ આવ્યો. પ્રવચનના માધ્યમે શું કરું બધી વાંચી લેજો બધું. ખાસ એટલું કહીશ કે એક સમાધાનો જોઈતા હોય ખાલી 50 રૂપિયામાં મોટિવેશનલ પ્રવચન તમે સાંભળવા છો ને 15,000 રૂપિયા ચાલશે. આપણે એ તમને પરવડે. અહીંયા તો એટલી સરસ વાત છે. આ સ્કૂલ એવી છે ને કે ટીચર ટાઈમ સર હવે વિદ્યાર્થીના ટાઈમે. આ સ્કૂલમાં દરેક ટીચર યુનિફોર્મમાં વિદ્યાર્થીઓ યુનિફોર્મ. આ સ્કૂલમાં ટીચર ફરી હિસાબે વિદ્યાર્થી ત્યાં ને ત્યાં જવું. હા, કોઈ ટીચર આગળ ગયો 6માંથી 7મીમાં વિદ્યાર્થી આગળ જાય. અહીંયા હું આગળ જાઉં તમે ત્યાં 10 વર્ષ પહેલા આવો તો ત્યાં બેઠે. પોલીસ સ્કૂલમાં ટીચરને પગાર મળે, અહીંયા પ્રભાવ ના મળે. આનંદ અનુકૂળતા હોય ખાસ વાંચો. 3 દિવસ બિલકુલ આની જેવા એક અલગ અલગ સબ્જેક્ટ ઉપર આણંદમાં પ્રવચન કાલથી શરૂ થશે. 3 દિવસની સ્થિરતા ત્યાં છે.
પછીના દિવસો બરોડા પણ ચૈત્રી હોળીની આરાધના છે, એ બધું પ્રોગ્રામ પછી થશે. પેમેન્ટ લેવા તમે બહુ દૂર સુધી જઈ શકો. પ્રવચન માટે ખાલી જીવનની બેલેન્સ કેવી રીતે રહે એવી કેટલીક ચાવીઓ જો મળી જતી હોય તો આણંદમાં ક્યાં છે એક જ આ કઈ कम्युनिटी हॉल पायलट स्कूल ની બાજુમાં આપ સૌ બધા પધારો સાથે 3 દિવસ માટે સવારે 9 થી 10:30 વાગે પ્રવચનનો ટાઈમ લગભગ આ જ રહેશે અને 3 દિવસ ત્યાં આવી શકે. પછી પાસ સિરેગે વિનમ પાણી કરવાનું બાણા જગન પણ જવાનું છે. આ બિલ કરવાનું જગન આને મુસલમાન ધાને કાર્યક્રમ માનતા લેવલમાં તેનો બહુલેમાં છે તેનો प्रवचन पूर्ण થયા બાદ પ્રભાવના યોજનાબેન રવિચંદ્ર શાહ પરિવાર તરફથી છે અને સર્વે ભાગીદારીને લાભ આપવા વિનંતી. મહાવીર વિદ્યાલયમાં સર્વે ભાગીદારી પધારેલ સર્વે આમંત્રિત મહેમાનોએ સ્વામિનારાયણનો લાભ આપવા